Puvarti, Talperu, Chintavagu, the rivers of Bastar for decades have seen water and blood flow together. But 2025 was a landmark year. Civilian and security forces casualties came to an all-time low. More than 1,200 Naxal cadres surrendered in just the last quarter of 2025. And the top leadership of Maoists were neutralized. 2026 is also pregnant with possibilities. So how close are we to realize the dream of a Naxal Mukt Bharat? What really are the challenges that remain? Let's find out. Sukhma, one of the 3 remaining districts where left-wing extremism is still a challenge as per Union Home Ministry data. Sukhma, the birthplace of one of the most dreaded Naxal commanders, Madhvi Hidma. Hidma, the man responsible for 26 deadly operations, eliminating entire Congress leadership in 2013, killing 76 CRPF Jawans in 2010. But today his home ground is turning a new page. The fear of mines in these Kacha roads loom large. Mines were planted all around these areas to keep away forces and government machinery for decades. We're now moving towards the Puvarti village. In the battle against left-wing extremism, Puvarti, the name has a lot of value, a lot of significance. This is the village to which Madhvi Hidma belonged to. He joined the CPI Maoist cadre as a minor, as perhaps a 15-year-old, and one of those rare tribals who rose up the ranks. He was recently neutralized by the Andhra Pradesh police. But Puvarti also is now being showcased by government as an example of development initiatives. A hospital has been sanctioned here. A Gurukul is already functioning inside the CRPF camp. A PDS is PDS building to ensure that rice and grains reach the villagers. That has been set up. Aadhaar cards, voter ID cards, all the markers of development are now being made available to Puvarti. But what do villagers think about the changing landscape as far as LW is concerned, the surrenders that have happened and the development projects that have been initiated? We are going deep inside Puvarti to find out what Hidma's family, what his village mates think about the changing landscape. Hidma was killed in an encounter by Andhra police in December. Soon after, his successor in PLGA Battalion 1 and an equally ruthless Naxal commander, Barse Deva, surrendered. Today, Deva's sister is a teacher at the Anganwadi at Puvarti, and the family has chosen a path away from the gun. आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्या नाम है, क्या काम करते हैं आप? नहीं, मैं भी आत्मसमर्पित हूँ। हाँ। पहले संगठन में था, लगभग 12-13 साल तक संगठन में काम किया हूँ। इसी साल 2025 में आत्मसमर्पण किया हूँ। अच्छा जी। क्यों सोचा आपने कि आप आत्मसमर्पण करना है? मतलब आत्मसमर्पण करने के लिए अभी का माहौल सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल है, इसी के कारण भी सोचा हूँ। और फोर्सेस का मूवमेंट भी ज़्यादा बढ़ गया था। हमारा जो पार्टी का जो सिद्धांतिक काम भी कार्य मतलब थोड़ा निर्णायक करने में थोड़ा तकलीफ था। हिडमा भी आपको लगता है आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार थे? हो सकता था अभी का माहौल को देखकर। मतलब वो सिद्धांत है, दृढ़ संकल्प जो लोग रहते हैं वो मार्क्सिज्म का सिस्टमेटिक है। जैसे मतलब समाज में जो भ्रष्टाचार है उसको तब तक रहेगा जब तक संघर्ष रहता है। इसलिए जो किसी के मन में रहता है विचार। ये बारसे देवा की माता जी हैं। नमस्ते। इनसे पूछिए, बारसे देवा ने जो आत्मसमर्पण कर दिया है तो इनकी क्या सोचती हैं आत्मसमर्पण के बारे में? आत्मसमर्पण की तो देवल बात आलसीन थी। बात आलसीन पे बेल मत पैतोड़ में का पैसा लांडा रे बेल मत कितोड़ में। क्या बोल रही हैं? मतलब उसको पकड़ के सरेंडर करवाया ना, दिखाया है तो क्या हम क्या सोचेंगे अभी। बट अच्छी बात है, जान बच गई है, अब सरेंडर हो गया, अच्छी बात है।
आ बेल मत पे कितोड़े मु चलांडा रुपए वा तोरे मु लोन बेसुटाई वेंडे वा तोरे मु क्या कह रही है? मतलब सरेंडर किए हैं, कभी भी आ सकता है घर में, आके जिएगा। अच्छा है, कमाई किस बात का तुम गादा खेती करके जिएंगे। खेती करके जिएंगे। हाँ। हाँ। कितने साल से नहीं देखा इन्होंने बारसेदेवा को? बस उन साल तीन चूड़ो मत तीन लोन की इल्लेंजी मुने मुने इन वा नूर कोनी जी केम तक ना मुने के वा बोड़ो लगभग 2-3 साल से। 2-3 साल से नहीं देखा है। हाँ। वा बोड़ो। तो जब वो संगठन में थे तो घर आते थे? आते थे कभी कभी, आते थे। वाइनूर गए संगठन ते मत्तास के वा नूर संगठन ते मत्तास के वाइनूर बेस्कस के वंडे उड़नुम को नहीं जित के उड़ो मम्मो। क्या कह रही है? मतलब पहले संगठन में रहते समय कभी कभी आते थे, बाद में यहाँ कैंप आने के बाद से नहीं आया है। नहीं आए हैं। हाँ। अच्छा, ये जो अभी नक्सल संगठन खत्म हो रहा है, ये अच्छा है? यहाँ कैंप खुल गया है, स्कूल खुल गए हैं, अस्पताल खुल गए हैं, अच्छा है? मतलब हमको नक्सल संगठन खत्म हो गया या पुलिस प्रशासन या कैंप वगैरह डालेगा तो हमको किसी का मतलब नहीं है। हमको सिर्फ हमारा जल जंगल जमीन बचना चाहिए, बस बचना चाहिए। अगर नया अस्पताल खुल जाएगा, अच्छा स्कूल खुल जाएगा तो खुश होंगी? पूर्ण अस्पताल वक्तस के स्कूल वक्तस के कुछ शांति नहीं। गुल्ले पिलान लो सिंतम तम नाती ना पिलान मिका गुल्ले स्कूल तक लो सी गुल्ले या गए वा तुम गादा। क्या बोल रहे हैं? मतलब सभी लोग बच्चों को अगर कोई बीमार वगैरह होगा तो सभी को भेज देते, मतलब लाते हैं अस्पताल में। मतलब अभी नया ओपन होने वाला है, वो बनने के बाद अच्छा बेस्ट अच्छा बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। Purvati till just a year ago was an unofficial liberated zone where Naxal militia roamed freely and Indian security forces dreaded to enter. The red Maoist flag and their messages decrying democracy and elections dominated the landscape. But today a lone tricolour is spotted here. Villagers queue up to get their voter ID card made, and the children drown all voices around as their books give way to the guns. Schools proved to be the biggest casualty of Naxal violence as Salwa Judum grew post-2011. Naxals either blew up school buildings, alleging that security forces were using them as bases to carry out anti-Naxal operations, or the students, teachers and the parent community were too scared to allow them to come to these school buildings. But now you see, this is Iraq Bhatti. It's a prefab structure. There are only limited number of students, but at least a beginning has been made. So let's take a look and figure out if schools indeed are a symbol of returning peace in Abujmar, in rest of Naxal affected areas. कितने दिनों से ये स्कूल में पढ़ा रही हैं? 5 महीना हो गया। 5 महीने पहले ये स्कूल यहाँ चालू हुआ है? जी जी। हाँ, तो पहले तो यहाँ पे स्कूल वूल नक्सली चलने नहीं देते थे, ऐसा मुझे बताया गया है। तो यहाँ के बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हैं या आपको बिल्कुल शुरुआत से शुरू किए हैं मैम हम लोग। जी। कितने बच्चे हैं आपके पास? 6। क्योंकि ये अबुजमाड़ का इलाका है, काफी अंदर है। कभी इस एरिया में आई नहीं थी, बस नारायणपुर तक सीमित थी। वहाँ से 5 किलोमीटर अंदर तक भी नहीं आई थी। मेरे लिए एकदम अचानक शुरुआत में तो मैं बहुत डरती थी, घबराते हुए आती थी, फिर मैम को रोकती थी। इनके साथ ही यहाँ ये जंगल तो काफ़ी डर लगती है मेरे को, अभी भी अकेली जब जाती हूँ ना बहुत डर लगता है। फिर इनके साथ तो मेरा इनका भाषा अभी तक मैं नहीं सीख पाई हूँ। कुछ छोटा मोटा समझ लेती हूँ, बाकी तो नहीं कर पाती हूँ। बाकी मैम है ट्रांसलेट कर देते हैं, तो फिर इनसे भी बात होता है। बच्चे तो अभी काफ़ी हिंदी सीख भी गए हैं। तो आप जैसे अभी आपके पास 6 बच्चे हैं, बट आपको उम्मीद है कि और? उम्मीद है मैम, उम्मीद है कि अगले वर्ष में और भी बच्चे मिलेंगे हमको। ये तो हमको 4 ही बच्चे मिले थे, ये 2 बच्चे तो नहीं, हम लोग अपने बच्चे को आश्रम में कहीं पढ़ाएंगे ऐसे करके बोले। फिर जब तक नहीं जाते तब तक हमको दो, हम पे भी भरोसा करके देखो, ऐसा करके इनके माता पिता लोग। अच्छा, आप तो लोकल है, आप ये बताइए कि यहाँ पे क्योंकि माओवादियों का काफ़ी प्रभाव था, हर जगह कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम थी, तो अभी कैसा है?
अभी ठीक है मैम, पहले जैसा नहीं है। मतलब कितने सालों पहले तक डर का माहौल था यहाँ? 2-3 साल, 2 साल हो गया शायद मैम। अच्छा, जी अभी तो ठीक ही है। अब ठीक है यहाँ? जी जी जी। कैसे मारते हो चिड़िया बताओ? गुलेल से। अच्छा, क्या बोलते हो आप गुलेल को? गुंजेल? हाँ। If schools are an indicator of Bastar turning a page, the road construction happening deep inside Abujmar, Bijapur, Sukma also indicate that resistance to mainstream is falling off. Roads at one point were the biggest enemy of Naxals. Many policemen have been killed during road opening or construction operations. The culverts, bridges embedded with IEDs would turn into a ticking time bomb till 2 years ago. But today these pictures and the conversations with villagers all indicate a distinct change. मैं समूह में हम लोग 2-3 महीना हो गया है काम करने के लिए। उस समूह के नाम से, मतलब कि समूह का नाम है जय वाला कार्य स्व सहायता समूह। उस समूह के नाम से विजय शर्मा सर दिए थे उस मशीन को। मैं चाहूँगी कि बना दें, फिर से खराब हो गया है। किस चीज का मशीन था और कितनी कमाई आपकी हो जाती थी? राइस मिल था और एक दोना पत्तल वाला था। तो एक ही बार वो दोना पत्तल में भी पत्तल बनाए थे 50-50, मतलब पूरा 100 था और उसको बेचे। अच्छा, तो ये मशीन मिलने से पहले आप लोग कैसे कमाई का क्या जरिया था? जमीन से या हाथ से कूटते थे? हाथ से। हाँ। तो कितना वक्त लग जाता है हाथ से कूटने में? तो दिन भर भी लगता था, एक घप्पा इतना भी कूटते थे ना। The conversations in Narayanpur, Sukma, Bijapur now sound as aspirational as in Amethi, Hazaribagh, Ratnagiri or any other part of the country. But reaching this point wasn't easy. More than 50 security camps were set up in the last 1 year alone. Compare this to 15 camps in 2021 and 19 the year after. With each new camp, forces penetrated deeper into Naxal-held territory, reducing their footprint and bringing in development. जब से हमारा डेडलाइन ये सेट हुआ है, एक ओवरऑल हमारा जो इकोसिस्टम था, जो हमारा जो सिक्योरिटी का जो इकोसिस्टम था, सिक्योरिटी जितने अलग अलग एजेंसीज है, वो एक सिंक में आ गए और हम लोग काम करना शुरू किए। और मल्टी प्रोंग जो अप्रोच था, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, हमारे सिक्योरिटी ऑप्स के हों, और इनका जो कर्टेल करना था, डिफरेंट जो इनके जो सपोर्ट मिलते थे, या तो मास सपोर्ट हो या फिर आपका इकोनॉमिकल सपोर्ट हो, सबको हमने कर्टेल किया और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जिससे ये जो नक्सल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको पूरी तरह से हम ख़त्म कर सकें। तो इस पे सारी एजेंसी से, चाहे वो स्टेट की एजेंसी हो, चाहे वो सेंटर की एजेंसी हो, इसके अलावा बाकी जो एजेंसीज जो हमारे साथ काम करती हैं, वो उन्होंने भी एक साथ मिलकर हम इस डेडलाइन को कंप्लीट करने के लिए हम इसमें प्रतिबद्ध हैं। इसमें क्या होता है कि जब आपको एक क्लैरिटी आ जाती है कि आपको क्या करना है और आपको एक रास्ता मिल जाता है किस तरह से करना है, तो आपका जो एक कांस्टेबलरी से लेके आपके हायर अप्स तक पूरे सबको पता होता है कि क्या करना है। तो उस डायरेक्शन में हमने काम करना शुरू किया। और जहां तक आर्म्ड कार्डर की अगर हम बात करें, आर्म्ड मिलिशिया कितने थे 2 साल पहले ये डेडलाइन सेट होते वक्त, और आज व्हाट इज द नंबर दैट वी आर लुकिंग एट? टेल अस अबाउट बीजापुर स्पेसिफिकली एंड फॉर छत्तीसगढ़ ओवरऑल। देखिए, इसमें हम अगर आर्म्ड कैडर की बात करें तो 2 विंग होता है इनका आर्म्ड में। पॉलिटिकल विंग को अगर सेट साइड करें तो इनमें इनके जितने जो मेंबर्स होते हैं वो पीएलजे मेंबर से शुरू होता है, पीएलजे मेंबर टू टिल अप टू सीसी। अगर पोलित ब्यूरो आर मेंबर्स ऑफ सीसी ओनली, तो उनकी बात करें तो सारे आर्म पकड़ते हैं। ये जो मेंबर थे अराउंड 1500 टू 2000 करीब ये पूरे मेंबर थे 2024 में ऑल ओवर इंडिया, छत्तीसगढ़ और बाकी सब एरिया में। बीजापुर पर से इसका नंबर 800 से 1000 के बीच में था। लेकिन आज की स्थिति में जो हमारी स्थिति है, हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं, तो 100 से 150 के बीच में इनके नंबर्स पहुंच चुके हैं। One of the turning points in this battle to defeat Naxal violence in Chhattisgarh
was neutralizing Basavanna Raju as he was called. He was General Secretary of CPI Maoist. General Secretary means he was the head of CPI Maoist. Basav Raju was eliminated by the local police, by the Chhattisgarh police in May 2025. Sunil Nag was one of the commanders who was part of that operation. Sunil, ऐसा ही जंगल रहा होगा जब आप लोग ऑपरेशन पे चले. आइए हम अपने दर्शकों को भी दिखाएं कि कितना मुश्किल है यहाँ का इलाका. आप बताएंगे 4 दिनों तक आप लोग इस ऑपरेशन में लगे रहे, किस तरीके का इलाका था वो, क्या दिक्कतें थी? दिक्कतें मैम अबूझमाड़ जान ही रहे हो, नाम से ही अबूझमाड़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ टेरेंट है, नदी नाले हैं और मौसम भी गर्मी का मौसम था. लेकिन जिस दिन इनकाउंटर हुआ था उस दिन हल्का हल्का बूंदाबांदी भी. और हम लोग जब हाइट चढ़ रहे थे तो हमारे यहाँ गाइड था खोटलू कोराम. उसको पहले सबसे पहले यानी कि उनका राउंड पहले हिट हुआ मैम. तो हिट हुआ तो वहीं पे ऑन स्पॉट वहीं पे शहीद हो गए. उसके बाद टीम चारों तरफ से सर्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनको चारों तरफ से घेर लिए मैम. घेरने के बाद फिर वहाँ पे पहाड़ी में झाड़ियाँ भी ज़्यादा थी. तो उनके तरफ से हैवी फायर शुरू हुआ तो हमारे तरफ से भी कंटिन्यू फायर किए. तो यूवीजल आ गए तो वहाँ से 2-3 ही भाग पाए, बाकी सब वहीं पे न्यूट्रलाइज किया गया. मैंने सुजाता पूर्व महासचिव गणपति के वाइफ सुजाता का गनमैन था. सबसे पहले मतलब भर्ती होने के बाद 2014 तक उन्हीं का गार्ड का काम किया. उस दौरान मतलब सभी केंद्र कमेटी के कैडर नेताओं को मिलना होता था. मतलब उसका गणपति का वाइफ का गनमैन था तो वो ले जाती थी मतलब नेताओं के पास. मतलब आप बसव राजू से भी आपने मिले, आप हिडमा को भी मिले? अपने मैं सभी केंद्र कमेटी के नेताओं से मिल चुका हूँ मैं. तो जब वो लोग बताते थे लोगों, क्या कहते थे कि क्यों माओवादियों के साथ जुड़े रहो? बताते होंगे ना आप लोगों को कि क्यों ये काम अच्छा है, क्या कहते थे? जी, मतलब उनका मेन मकसद वही है कि अब यहाँ जो भारत सरकार जो यहाँ चल रही है उसको उकड़ के उनका सरकार वो करना, मतलब खड़ा करना, वही मकसद था उनका. मतलब पहले से उनका वो मकसद से उन लोग सिखाते थे मतलब जल जंगल ज़मीन को बचाना है और अपना जनता सरकार को यहाँ पे खड़ा करना है. और उसके लिए लोगों को मारना पड़े, बच्चों को उठाना पड़े तो सब सही है? वो तो गलत है पर नहीं, ऐसा वो कहते थे. जी, ऐसा कहते थे मैम. फिर जब आप छोड़ कर आए, आप छोड़ कर क्यों आए? मैम मैं छोड़ कर आया, वहाँ जाने के बाद मैं 2010 से 2017 तक मैं एक बार भी लौट कर नहीं आया था घर में देखने. और उनका जो राजनीतिक था वो थोड़ा राजनीतिक ठीक ही था, लेकिन थोड़ा सा जनता के साथ व्यवहार करना थोड़ा सा गलत था मैम. मतलब किसी को भी ये मुखबिरी, पुलिस का मुखबिरी बोल के मारना, निर्दोष लोगों को भी मारना, ऐसा होता था. तो थोड़ा सा देखा तो ये गलत लगा मेरे को. तो उसमें फिर बाद में थोड़ा सा सोच हो गया कि मैं जाऊं. और छोड़ के आना आसान था? आने दिया उन लोगों ने? नहीं मैम. मैं 2021 से हूँ यहाँ पर. मेरा ज्वाइनिंग 2021 से बस्तर फाइटर में हुआ है. क्यों सोचा आपने कि ये काम करना है? जी, मेरे को इस विभाग में आना था, मेरे मतलब सपोर्ट करना था यहाँ पे कि मैं भी कभी फोर्स में जाऊँ. ये मेरा चॉइस था. देखिए, महिलाएं पुलिसिंग का तो काम करती हैं, लेकिन यहाँ जंगल में 4-4 दिन ऑपरेशन में रहना मुश्किल नहीं होती? नहीं, शुरू में मुश्किल होता है, उसके बाद सर्वाइव करते करते मतलब हो जाता है. तो क्यों आपने सोचा कि इस ऑपरेशन मतलब ऐसी नौकरी करनी है? मैम, हमारे गांव में बहुत नक्सली थे तो इस कारण से बहुत वहाँ पे प्रॉब्लम था, इस वजह से मैं भी आना चाह रही थी. कौन सा गांव, कौन सा जिला? ओरछा से मैम. ओरछा से जी, नारायणपुर जिला. तो नक्सली आकर तंग करते थे? जी मैम, वहाँ पे बहुत नक्सली थे. जी, अपना एक्सपीरियंस बताइए, जब आप गांव में थी क्या होता था? तो वहाँ पे बहुत नक्सली आते थे मैम. मतलब गांव के आसपास जो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर है वहाँ, तो लोग वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान थे वहाँ पे. जी, तो अभी सिचुएशन बहुत अच्छा है कि वहाँ पे अभी वैसा कुछ नहीं है. हम वहाँ पे रह सकते हैं, जा सकते हैं.
If we are talking about making India Naxal violence free, what is the big challenge that still remains? We are almost nearing the deadline now. One of the biggest challenge which still remains are the splinter groups. They are very small in number, hardly 40 in number, and they are spread across the Abujmad area. So they are becoming a challenge. But very soon we'll operate over them, and we also request them, if they want, they can come and surrender. So, but if some of them still, because their chief Devuji Tirupati and some of the other central committee members are still wanting to keep the fight on. So if this particular splinter group, as you call them, refuses to surrender and in civilian clothes, if they mingle with the village population, will that become a bigger headache? I don't think there will be much of a headache, but because we have them in our fingertips and we know who are they, and if they mingle with the villagers, then also they will be identified. And as per the current scenario, villagers are also in the favor of police, so they are giving very good information. As the government schemes are going to them, they have realized that the time has changed, and it's a peak time to switch the sides, and they have chose the right side. Home Minister Amit Shah set a deadline of making India Naxal free 2 years ago, neutralizing CPI Maoist General Secretary Basav Raju, reclaiming Purvarthi in Sukhma, all of Abujmar were all significant milestones in achieving the deadline. But one operation which broke the back of Naxals in Chhattisgarh was the operation to seize Karagutta Hills in April 2025. The KGL Hills were one of the last remaining bastion of CPI Maoist. In the scorching summers of 2025, more than 2,000 troops from across forces gherowed the hills and delivered a body blow to Naxals, forcing Hidma to flee Bastar. The entire arms depot of Maoists was seized and mass surrender soon followed. और वहाँ 6 महिला लोग को 6 दिन तक रखे थे, तो बड़े बड़े हिल्स बड़े था, तो उनको बहुत सामना किए, कभी रस्सी से चढ़ना, कभी बहुत ऊंचा है, तो उसमें फिर सपोर्टिंग लगा बॉयज़ लोग का, सर लोग का, जितना भी बहुत मेहनत की है मैम। 11 दिनों तक आप ऊपर वहाँ चढ़ाई करते रहे, नक्सली ऊपर थे, आप लोग नीचे से चढ़ रहे थे, तो क्या ये डर नहीं था कि ऊपर से एक गोली पूरी ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर सकती है? जी, ऐसा ख्याल तो हमारे मन में था, लेकिन उससे पहले ही हमारे अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया था कि हर जगह आड़ लेना है, अपने आप को सुरक्षा में रखते हुए ही गाइड के दिशा निर्देश अनुसार ही चलना है। और जो हमारे अधिकारी थे वो सबसे पहले उन्होंने ड्रोन के ज़रिए ही सब कुछ एरिया को समझते हुए ही हमें रूट बताया था, उसी रूट के अनुसार ही हम चले थे, जिसकी वजह से हमारे कम कैजुअलिटी हुई है, थोड़ी बहुत नुकसान हुई, लेकिन उस नुकसान को हम लोगों ने सफलता में भी हासिल किया है। अगर हम किसी भी इंसान को जिंदा रहना है तो राशन ज़रूरी है, उसी को हमें सबसे पहले तोड़ना होगा, इसी मंशा से हमें भेजा गया था। और साथ ही साथ तो वहाँ पे एक खतरा ये था कि हम पहाड़, जैसे आपने पूछा कि पहाड़ जब हम चढ़ते हैं तब ऊपर नक्सली हैं, हम नीचे हैं तो हम चढ़ते हैं तो हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक आड़, और इस चीज़ का हमें सबसे पहले ही हमारे अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई थी, अपना आड़ हमेशा पकड़िए और आगे बढ़िए। सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था उसमें? उसमें मुश्किल वक्त गर्मी का मौसम था, तो पानी की कमी हो रही थी, फिर भी एयरफोर्स के द्वारा 1-2 बार पानी पहुंचाया गया था, जिससे 2 लीटर में पानी पूर्ति करना पड़ता था। More than 1,500 Naxal cadres surrendered in 2025. Government is imparting training in driving, tailoring and other skills to rehabilitate the erstwhile Maoists. Some are still hardened Naxal, waiting and watching, while others have forgotten what life away from the forest looked like. At the Livelihood College in Narayanpur, we met Tulsi Pallo, a child Naxal who has recently surrendered. She claims she was 15 when, inspired by Maoist propaganda, she left her village to join the party. But speak to her and you might be left wondering if she was far younger when toys were replaced by guns and IED in her life. आप लोगों ने इतना अच्छा खेलना कहाँ सीखा? नहीं सीखे, मैं यही पसा को पहली बार खेल रहे हैं जी। और इतना अच्छा खेलना आ गया है। अरे तो कितने दिनों से है यहाँ पे? कितना 2 महीना है। अक्टूबर से यहाँ रह रहे हैं ना? क्या उम्र होगी आपकी? 20 साल? 19 साल जी। आपकी 14 या 15 साल है। तो कब से हैं आप संगठन के साथ? कितने साल से हैं संगठन के?
23 बोल रही है। 23 जी 2023 जी। क्यों गई? गाना वाना सुन के गई। गाना वाना सुन के, उनके गाना जी, सुन के अच्छा लगा। जी। आप क्यों गई पार्टी में? पूछिए पार्टी में क्यों गई? भारत ने कहाँ नाचते हैं, गाना ले जाते तब उसको देख के गई हूँ। बोलेंगे क्या काम करते थे आप लोग पार्टी में? खाना बनाते थे? जी। खाना बनाते थे जी। अपने बारे में बताइए, कब कहाँ की रहने वाली हैं, कब आपने संगठन ज्वाइन किया और क्यों छोड़ने के बारे में सोचा? मैं तो 2016 में संगठन में जुड़ गई। उसके बाद फरारकोट क्षेत्र में काम करती हूँ। पुनर्वास में जोड़ने के लिए भास्कर दादा ने बताया, उसी के साथ आ गई। अच्छा लग रहा है यहाँ? ऐसी तो क्या बताऊँ, मैं अच्छा लग रही है बहुत। नई जिंदगी है ना, अलग जिंदगी है। हाँ हाँ, अलग है। हाँ। आपको मतलब आपको, भास्कर दादा को और जो बाकी लोग थे उनको ये लगने लगा क्या कि अब ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती, क्या इसलिए पुनर्वास के साथ जुड़े? नहीं, ये अभी का परिस्थिति समझ गई ना, अभी का परिस्थिति में इसे हथियारबंद संघर्ष कर नहीं पाएंगे, इसलिए पुनर्वास में जाएंगे करके। आपने कब पुनर्वास के साथ जुड़ी? आप कब आपने अपना हथियार सरेंडर किया? अक्टूबर में। आप भी वही भास्कर और रुपेश वाले ग्रुप में थी? हम लोग अलग। आप अलग थे जी। बट 20 अक्टूबर को ही आपने नारायणपुर जिला में 20 अक्टूबर का सिलेंडर करने। अच्छा, तो पहले किसी मुठभेड़ के साथ जुड़ी हुई हैं आप? जुड़े। अब बताइए क्या क्या हुआ था? तुलतुली मुठभेड़ में। तुलतुली मुठभेड़ में कितने लोग मारे गए थे? वहाँ 35 लोग मारे गए थे। नक्सलियों में से? नक्सलियों। और पुलिस वालों में से भी किसी की मौत हुई थी? कितने लोग हुए कि मेरे को जानकारी नहीं। बट पुलिस वालों की भी मौत हुई थी। परिवार के साथ जाकर वापस रह पाएंगी? हो जाने से, यहाँ छुट्टी देने से फिर जाके रहना चाहती हैं? परिवार के साथ आप वापस जाके रहना चाहती हैं? जी। Not many weeks ago, these weekly bazaars of Bastar were battlegrounds. Naxals would abduct villagers from such bazaars, accuse them of being police informers, and drag them deep inside liberated zones. Crowd would gather as mock trials and kangaroo courts pronounced guilt and punishment. The Jantana Sarkar, as Maoists called their rule, was meant to spread fear and demand subjugation from masses. With new roads, mobile towers, access to government schemes, the worldview of the Bastaria is changing. Left-wing extremism is now breathing its last breath, but the road to reach this point was full of sacrifices. Where I am coming to you live from is the Silgar camp. 5 years ago, villagers had sat here for months together, for 6-7 months, protesting against a camp opening here. Next door, in the next camp, 2 kilometers away, 3 CRPF personnel lost their lives again because locals were incited by Naxals to protest against setting up of the camps here. The board outside Silgar camp tells you that on 1st of February 2023, CRPF personnel drove from Basagoda to Jagargunda, and with that, a 2-decade-long lull in any vehicular movement on this stretch was broken. One CRPF Cobra Jawan was also abducted from here as protests continued. So today, when we look at normalcy, when we look at normal, road movement, vehicular traffic, villagers getting help of government machinery, one must remember the sacrifice that has taken to reach this point. Thanks for watching.